नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश देशांतर में एक खास बहस है। उस बहस की एक वजह है, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जाहिर की है जिसमें ये कहा गया था कि सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना और सभी दर्शकों को इस दौरान खड़े होना जरूरी है। सोराबजी ने इसे जुडिशियल ओवररीच या फिर न्यायपालिका का अपनी सीमा से बाहर जाना बताया है और साथ ही पूछा है कि क्या खड़े होना ही राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने का एकमात्र तरीका है। सोली सोराबजी ने एक और महत्वपूर्ण पहलू की तरफ ध्यान दिलाया है कि आखिर इस आदेश को लागू करने का काम कौन करेगा। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश भर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान जरूर बजेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमा हॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय झंडा दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सिनेमाघरों में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा। आज देश देशांतर में इन मुद्दों को हम उठाएंगे और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद को लेकर क्या विचार था और क्या उनका राष्ट्रवाद हमारे आज के राष्ट्रवाद से मेल खाता है और क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर कई जाने माने लोग, वो लोग जो कि जाहिर है देश से उतना ही प्रेम करते हैं जितना दूसरे लोग, उनको आपत्तियां हैं। मेरे साथ खुद मौजूद हैं सोली सोराबजी, जाने माने ज्यूरिस्ट और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कार्यक्रम में। दूसरे खास मेहमान जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर सलील मिश्रा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरएसएस के थिंकर प्रोफेसर राजवीर शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत सोली सोराबजी आपसे ही करना चाहती हूँ। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब अदालत का ये आदेश आया तो जो हमने आपका बयान पढ़ा है, मैंने खुद अपनी प्रस्तावना में भी पढ़कर सुनाया था, आपको किस बात से आपत्ति है? Standing up in the cinema theatre when the national anthem is played is not the acid test of patriotism. Many people may not be able to stand up for medical reasons, physical reasons. Many people may not stand up because of the constitutionally held belief that we won't sing the national anthem of any country, because according to them, they are Jehovah's Witnesses. They only sing the praise of Jehovah. Now, we may feel that the beliefs are bizarre, very strange, but all this was gone into by the Supreme Court way back in 1966 in the famous case of Brijoy Emanuel, where the Supreme Court held that if a belief is genuinely and constitutionally held, then the court will not go into its correctness, but will respect the belief, and if the person, of course, he must not disrupt the singing or assembly, does not participate in the singing of the national anthem or anything of the national flag, he cannot be deemed to be unpatriotic. That's the view taken by the Supreme Court. Now, in 1966, Justice Chinnappa Reddy's famous judgment. The recent interim orders and directions makes no reference to the judgment at all. Besides, some of the directions are not capable of being implemented. How will you know how many people stood up, how many did not, what were the reasons, how many of them were Indians or non-Indians? Because the court says the fundamental duty under Article 51 capital A to respect the national flag and the national anthem. Surely there may be people who are not Indians. There is no such obligation on them. So then again, exit doors will be closed till the national anthem is concluded. What if someone wants to urgently go out for other reasons? So these are matters in which I think the Supreme Court rather overreached and entered into fields which should not have done. Could have given directions to the executive or said, tell the cinema authorities, owners to comply with such directions. But the Supreme Court must not get into this field. To my mind, this is beyond the judicial ken. बिल्कुल। प्रोफेसर सलील मिश्रा, बताइए, कई महत्वपूर्ण बातें जो पहले भी कह चुके हैं सोली सोराबजी और अभी भी कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, और काफ़ी हद तक आपको लगता है कि क्या वाकई जो डिग्निटी है राष्ट्रगान की, जो गरिमा का जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं कि अगर आप लागू कराना भी चाहें और आपको लगता है कि यही एक तरीका हो सकता है, तब भी कैसे संभव है? आखिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करेगा?
आरफा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण बात अभी कही गई वो ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है इसकी एक गरिमा है, इसका एक प्रतीकात्मक महत्व है, और प्रतीकों को हम एवरीडे, रोज़ाना, मंडेन में नहीं ढकेलते हैं, तब उनका महत्व खत्म हो जाता है। प्रतीक का महत्व यही होता है कि उनको हम एवरीडे से अलग रखते हैं। ये कोई फिल्मी गाना नहीं है जो जब भी हमने गा लिया, उसको हमें सेक्रेड है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त हम रोज़ तो नहीं मनाते हैं, और उसकी सेक्रेडनेस को, इंपॉर्टेंस को तभी बरकरार किया जा सकता है, तभी बनाया जा सकता है कि उसको रोज़मर्रा से हटाया जा सके। तो ये नोशन कि उसको सिनेमा हॉल में दिखाने से या दिखाने से उसका महत्व बढ़ जाएगा, उसका महत्व बढ़ेगा नहीं, वो रोज़मर्रा में आ जाएगा, उसका महत्व घट जाएगा। और कुछ लोग फॉलो करेंगे, कुछ फॉलो नहीं करेंगे, उसकी अलग अलग वजह हो सकती हैं। तो ये जो मूव है, मैं इसके खिलाफ इसलिए भी हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय गान की एक प्रतिष्ठा है, उसकी एक गरिमा है, उसका एक सम्मान है, उसका एक राष्ट्रीय प्रतीकात्मक महत्व है, एक नेशनल सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस जो है, वो सारी कॉम्प्रोमाइज होती है इस चीज से। वो सिग्निफिकेंस हम तभी मेंटेन कर पाएंगे जब हम उसको रोजाना, एवरीडे, ऑर्डिनरी उससे हटा के, उसमें डालना नहीं है, उससे उसको हटा के रखना है, तब हम उसको एक सेक्रेड सिंबल के रूप में अपहोल्ड कर लेकिन पाएंगे। एक नया जो आर्ग्यूमेंट, एक जो नई दलील है वो ये है कि दरअसल जिस दौर में जिस ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं वो भी 1986 का ऑर्डर है जो केरल का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद के दिनों में आपको लगता है कि बदलती हुई दुनिया में जहां बहुत ग्लोबलाइज्ड हो गई है दुनिया, भारत भी ग्लोबलाइज्ड है, राष्ट्रवाद की या देशभक्ति की भावनाएं कहीं कमज़ोर न पड़ जाएं, इसलिए नए सिरे से देखना और जो नौजवान पीढ़ी है उसके अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना डालने के लिए ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ें की जाएं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि राष्ट्रवाद की भावना में जो हमारे पूरे देश का इंक्लूसिव टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, उसमें जो हमारी नई पीढ़ी है, हो सकता है कि उसमें राष्ट्रवाद का उस तरह से भावना हो जैसा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में था, जबकि राष्ट्रवाद हमारा एक लाइफ फोर्स था, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स था। वो हो सकता है कि अब ना हो, लेकिन उस राष्ट्रवाद को लोगों के दिलों और दिमागों में लाने का क्या बेहतर तरीका हो सकता है, यह बहुत कॉम्प्लेक्स और बहस का मुद्दा है। उसको एवरीडे के प्रतीकों में अगर आप रिड्यूस कर देंगे, उससे राष्ट्रवाद बढ़ेगा नहीं, उससे तो वो एक ऑर्डिनरी बन जाएगा। हमें उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस मेंटेन करना है। यह बात सही है कि हमारी नौजवानों में, आगे आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रवाद का क्या महत्व है, हिंदुस्तानी भारतीय होने का क्या महत्व है, भारतीय होने का मतलब क्या है, भारतीय का क्या क्या चीजें हैं जो उसमें शामिल होती हैं, इन सब चीजों को बताना है। लेकिन उसको बताने के बिल्कुल अलग तरीके होंगे। उनको प्रतीकों को एवरीडे में लाने से वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा और ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और खासकर सोराबजी जी ने यह भी कहा है कि कल को एक दुष्ट पापी व्यक्ति जो है वो खड़ा होकर सिर्फ खड़ा हो जाएगा, उसका राष्ट्रवाद इससे वो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी नहीं बन जाता है। वो भी बिल्कुल ठीक बात है। प्रोफेसर राजवीर शर्मा, ये बताइए आपकी इस बारे में क्या राय है, और खासकर आप आरएसएस के थिंकर हैं, बीजेपी की सरकार है और राष्ट्रवादी सरकार मानी जाती है, क्या आपको लगता है कि वाकई राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है, या मैं बेहतर शब्द का अगर इस्तेमाल करूं, जो वाद है, कहीं वो बहुत बेहतर तरीका नहीं है किसी भी चीज़ को बयान करने का, देशभक्ति की जो परिभाषा है या देश प्रेम की जो परिभाषा है, क्या वो बदल रही है? पिछले 2-3 सालों में हमने उसका एक नया सिरा पकड़ा है। मुझे लगता है मैं आपकी बात से शुरू करता हूँ कि वाद और विवाद हर विषय पे अगर खड़ा होगा तो वो ना तो समाज के लिए और ना ही देश के लिए हितकर होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये सिंबॉलिक नहीं है केवल। अगर आप आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। माने ये है कि इस कर्तव्य को हम केवल एक कोने में रख दें और कभी कभार सिंबल के रूप में उसको देखें तो मुझे लगता है कि वो अप्रभावी हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का बोध कराना, कहीं ना कहीं उस कर्तव्य को दोहराना हर व्यक्ति के मस्तिष्क को और उसके मन को प्रभावित करता है। एंड आई थिंक यू आर अवेयर कि आर्टिकल 51 सेज that every citizen of this country shall abide by the ideals and institutions of the country and will respect the national flag and also the national anthem. अगर हम इस जजमेंट को देखें तो इस जजमेंट में भी उन्होंने ये कहा है, केवल उन्होंने नेशनल एंथम की बात नहीं कही है, उन्होंने ये कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज जो नेशनल फ्लैग है दैट विल बी शोन। एंड एट द सेम टाइम ये जो बातें कह रहे हैं कि कोई खड़ा हो नहीं पाएगा, कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है और खड़े होने में असमर्थ है दैट ही विल आल्सो स्टैंड अप। लेकिन ऐसा हुआ? No. और उस तरह के फिजिकली असमर्थ आदमी की पिटाई हुई, ये भी आपको मालूम होगा। True, but you know at times there could be some kind of a incident which may not be always justified. But if there are certain genuine reason a person may not be able to stand up, nobody is saying that no,
he shall have to. Number one. Number two, if you look at the preamble of the Constitution, preamble of the Constitution also says that we the people of India resolve to propagate among all people of the country fraternity, dignity of the individual, unity and integrity of the country. Are they merely slogans? They have to be practiced. They have to be told to our young generation that we are bound to spread fraternity. What is fraternity? Fraternity, in fact, means the sense of oneness, unity, psychological unity, and national unity and integrity is our constitutional commitment. It's not merely a moral dimension. And therefore, everyone, before making any kind of objection to the judicial overreach, I don't know whether they have read Article 142 of the Constitution or not, Article 141 of the Constitution or not. They should read these two constitutional provisions, and I think they will realize that constitutional guarantees are there, enhancement of powers of Supreme Court are there, inherent powers of the Supreme Court are there. हमारे साथ जो है इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पारसा वेंकटेश्वर राव जूनियर भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं सोली सराब जी आपकी तरफ आना चाहती हूँ और फिलहाल इस बात का जवाब आपसे लेना चाहती हूँ। यहाँ प्रोफेसर राजवीर शर्मा जो आरएसएस के थिंकर हैं, उन्होंने जिस तरह से कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि हम संविधान को जो है एक किताब को एक दूर रख दें और कभी कभी पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। बाकायदा प्रोविजंस का वो जिक्र कर रहे हैं जिसमें कि ये हमारा धर्म है, ये एक ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें कि हम जो राष्ट्रवाद है या देशभक्ति है उसकी भावना को जो है ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर जगाएं। ये कह रहे हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म जो शब्द का इस्तेमाल किया है, ये जो टर्म का इस्तेमाल किया है, मैं चाहती हूँ आप इस पर भी रोशनी डालें कि कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियटिज्म ये नई चीज़ है। I don't understand what is constitutional patriotism. Patriotism cannot be legislated. Patriotism cannot be judicially mandated. It must come spontaneously from the heart. And I'm sure many people are patriotic, even if they don't stand up, if they have different reasons. The question is this a matter in which the judiciary should intervene? Or is it a matter best left to the executive and the other authorities? That's my question. Because what happens, as I told you, some people may not be able to stand up and pay the respect for different reasons, diverse reasons. Who gets into all that? These are not the matters for judiciary. Judiciary enforces fundamental rights, very good. Judicial activism has done very good for the people, especially the marginalized sections, exploited sections. But this matter, I think the judiciary has gone a little haywire. We know Article 142. No one disputes the power. But the question is, what is a wise exercise of power to give some directions? That's the point. But that's a debatable point, and that's why we are debating here. जी सोली सराब जी ये बताइए, फिलहाल जो अभी राजवीर शर्मा कह रहे हैं कि आप इनकी बात का जवाब देना चाहेंगे। साफ साफ ये कह रहे हैं कि संविधान में लिखा हुआ है, इन्होंने संविधान पढ़ा है कि उसमें लिखा है कि हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हम आगे बढ़ाएं, और ये इसके रास्ते में कहीं नहीं आता। उनका ये कहना है कि हम सिर्फ सिम्बल्स में जो है वो राष्ट्रवाद को या पेट्रियटिज्म को जो है सिर्फ सिम्बल्स में सिमट के ना रह जाए, बल्कि इससे ज़्यादा उसको फैलाने की ज़रूरत है, आम जनता तक पहुँचाने की ज़रूरत है और हर रोज़ उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। When constitutional duty hai, but that's only discharged by standing up. Sorry. My difficulty is, I don't understand Hindi too well, so I'm not understanding your question very well. So if you could just translate No, Mr. it for Sarab me. ji, what he's trying to say, Mr. Rajveer Sharma, he's saying this is our constitutional duty to propagate patriotism among the common people and also the young generation of this country. So that is what he's trying to say, that we should not really limit I agree. nationalism to just symbols, but actually practice it in our everyday life. No, I agree, but that should start with the education institutions. The young people should be instilled the feeling of patriotism. They should be brought up. I agree with you. They must have the feeling for the motherland. They must have the patriotic feeling, but it can't be legislated, nor can it be judicially mandated. Start with the home, start with the schools and education institutions. That's my point. पारसा जी बताइए कि एक बड़ा सवाल ये भी पैदा हो रहा है, आपकी तरफ मैं आती हूँ, कि हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि आखिर
ये राष्ट्रवाद जो हमारे सामने है, इसका जो चेहरा हमें नज़र आ रहा है, इसकी जो शक्ल नज़र आ रही है, क्या जो हमारे नेशन बिल्डर्स थे, वो लोग जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, राष्ट्र जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसमें भाग लिया, उसके बाद संविधान बनाया, जो खासकर राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं टैगोर, उनका ये कहना था खासकर कि अगर हम ये कोशिश करें कि हम पूजने लगें अपने देश को, तो दरअसल कहीं ना कहीं, अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि टू वर्शिप विल ब्रिंग कर्स अपॉन द नेशन, कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के लिए बहुत बुरा है और राष्ट्र में बहुत अच्छी चीज़ नहीं लेकर आएगा देश के लिए। उन्होंने ये भी कहा, खासकर चेताया है कि एक सेक्रेड ऑब्लिगेशन की तरह जो है वो राष्ट्रवाद को हम ना लें, जिस बात पे ये भी माना जाता है कि काफ़ी हद तक महात्मा गांधी से भी उनकी असहमति थी राष्ट्रवाद या देशभक्ति के इन मूल्यों पर। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में अगर टैगोर ये बातें कहेंगे जहाँ पर ज़बरदस्ती का राष्ट्रवाद हमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो शायद हो सकता है उनको भी एंटी नेशनल कहा जाए? बिल्कुल। आज के माहौल में बीजेपी और आरएसएस टैगोर के जो राय है उसको एंटी नेशनल करार देंगे। इस मामले पे अगर हम वापस आए सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्टिव को, एक जो है एक इंटरिम मेजर है, वो शायद नहीं देना चाहिए था, लेकिन बुनियादी सवाल इसलिए उठते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रियाटिज्म जो है बहुत ही वेग टर्म है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी बात है ये करेक्ट इसमें जो है बहुत ही जुडिशियल इन्फर्मिटी है, यानी कि कानूनी कमज़ोरियां हैं इस डायरेक्टिव में। पहला कमज़ोर ये है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का मतलब ये है कि टू डिफेंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, इट्स नॉट टू डिफेंड एनी अदर थिंग। दूसरी बात है आर्टिकल 51A इज़ अ वेरी ऑब्जेक्शनेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वो इमरजेंसी के दौर में इंसर्ट किया गया था। कोई भी लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ भी दुनिया में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होते हैं। ये राइट विंग टिरानिकल थोड़ा डिक्टेटोरियल का ये है। और आर्टिकल 51A को कोई कोर्ट नहीं कर सकता जजमेंट के इस पे जुडिशियल वर्डिक्ट में, क्योंकि सोशल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है नॉन जस्टिशिएबल है, जस्टिशिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, दूसरे आर्टिकल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो जस्टिशिएबल है। सो आर्टिकल 51A को कोर्ट करके बताएंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आइडियल्स हैं, उस आइडियल के तरफ देश को जाना चाहिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती कोई लागू नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि नेशनल एंथम हो, नेशनलिज्म हो, ये जज्बात का मामला है और जज्बात पर कानून के जरिए जज्बात बनाए नहीं जा सकती। लेकिन आप कानून नहीं बना सकते कि आप अपने देश को प्रेम करें, अपने माँ बाप को प्रेम करें, वो खुद ब खुद आ जाता है। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्षद जी, 1986 का जो मामला है जिसका जिक्र सोराबजी जी भी कर रहे हैं कि उसमें ये कहा गया कि किसी की अगर धार्मिक भावनाएं इस बात की इजाज़त नहीं देती तो वो ना गाए राष्ट्रगान। लेकिन मुझे ये बताइए कि आखिर कैसे हम देश को एक रख पाएंगे जब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग उनकी मान्यताएं होंगी, अलग अलग तरीके से वो रहना चाहेंगे, तो क्या एक बेसिक कॉमन थ्रेड जो है क्या वो होना ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सिंबॉलिक तौर पे ज़रूरी नहीं है। जो नेशनल एंथम को गाना नहीं चाहती, एक केरला में एक क्रिश्चियन सेक्ट था, उनके तरफ से एतराज़ था कि वो गाना नहीं चाहते, लेकिन वो इतना ही इंडियन है जो दूसरे लोग हैं, इसलिए इसको लीगलिस्टिक न बनाएं। ये लीगल कानूनी मामला नहीं है, ये जज्बाती मामला है। और हर कोई अपने दिल से जब भी कोई कौमी तराना गाई जाती है, सब लोग ठहर जाते हैं, खुद ब खुद ठहर जाते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक आध लोग ठहरना नहीं चाहते हैं तो उस पर हमको एतराज़ नहीं करना चाहिए, उससे कोई खतरा नहीं है जी, उससे देश के लिए कोई खतरा नहीं। अगर कोई छोटे 10-15 लोग या छोटा सेक्ट कोई कहता है कि हम नहीं गाएंगे तो उनको उससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो एतराज़ कर रहे हैं अपने मज़हब के प्रिंसिपल्स पे, वो इसका मतलब नहीं है कि वो देश से नफरत करते हैं, वो देश के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं। वो देश को उतना ही मोहब्बत करते हैं जितने दूसरे लोग करते हैं। छोटा सा इंटरवेंशन यहाँ पे करना चाहूँगा। ये बात सच है कि ये जो नेशनलिज्म है ये जज्बात से भी जुड़ा हुआ है, और ये कहते हैं जज्बात जो है वो लेजिस्लेट नहीं हो सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स अपने माँ बाप का लालन पालन, उनकी सेवा करना, उनका ये करना, ये हमारे जज्बात का मामला है। शुरू से हम इसको ट्रीट करते रहे हैं कि ये हमारे, इसके लिए भी आदेश देता है। देयरफॉर जब ये जज्बात किसी ने लागू करने बंद कर दिए तो उसके लिए हमने कानून बना रखा है। कानून ये बना रखा है कि नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी काइंड ऑफ ए चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ द सीनियर सिटीजन्स।
तो कोई हमारे साथी ये भी कह सकते हैं साहब ये तो बहुत जुल्म हो गया, लेजिस्लेट कर दिया आपने, तो माँ बाप को तो पालन करें ना करें, उनकी सेवा करें ना करें, उनको कहीं भी डाल दें, सड़क पे डाल दें, क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस. आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ ए आर्गुमेंट इज अ लॉजिकल आर्गुमेंट. प्रोफेसर समटाइम्स यू हैव टू जी, लेजिस्लेट. सवाल थोड़ा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस बात से सहमत हैं? वो जो कह रहे हैं ये बात भी ठीक है कि अभी थोड़े दिनों पहले ही कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि आप जो है माँ बाप के घर से नहीं निकाल सकते, इसको लेकर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट था। हालांकि ये जज्बात का मामला है, उसके बावजूद भी कोर्ट को इंटरवीन करना मैं पड़ा दो है। तीन बातें कहना चाहूँगा। पहली तो ये कि वाद विवाद जो है वो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, कमज़ोर नहीं करता। तो अगर अलग अलग वाद विवाद हैं, अलग अलग राय हैं, तो ये अच्छी बात है। ये भी भारतीय होने का मतलब है, भारतीय समाज और परंपराओं में है। हमारी परंपरा एकांगी नहीं है, प्लूरल है, मल्टीपल है, तो मल्टीप्लिसिटी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब मैं सिंबॉलिक प्रतीकात्मक की बात कर रहा हूँ तो मैं उसका महत्व कम नहीं कर रहा हूँ। ये सारे प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनको मेंटेन कैसे करना है ये मसला है। उनको मेंटेन हमें करना है, इस पर कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन किस तरीके से करना और कौन सा बेहतर तरीका है मेंटेन करने का। क्या उनको ऊपर से इंपोज किया जा सकता है? क्या सजा देके, क्या छड़ी देके आप लोगों से ओबीडियंस करवाएंगे, या ज्यादा बेहतर तरीके हैं जिसमें से कि नीचे ग्रो करेगा? ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वजा का, झंडे का, राष्ट्रीय दिवस का, इन सबका, राष्ट्रीय हीरोज का पूरी की पूरी तरीके से सम्मान करना है। अपने नेशनल मूवमेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है। तो आगे आने वाली पीढ़ी को में किस तरह से राष्ट्रवाद बढ़ाया जाए, किस तरह से देशभक्ति बढ़ाई जाए, वतन परस्ती बढ़ाई जाए, इसके लिए बहुत से तरीके हमको सोचने होंगे। एजुकेशन, घर, बहुत सारे तरीके से, मार्केट के भी थ्रू करना होगा। ये ऊपर से ऑर्डर देने से तो आपको पता है डिफाइंस की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ती है। तो ये होना चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्या ये बेहतर तरीका है करने को? और यहां पे मेरा मानना है कि ये कोई बहुत बेहतर तरीका नहीं है, और तरीके हैं जिनके थ्रू ये किया जाना चाहिए। Mr. Sarabji, I'm running out of time, but there are two very important questions that I would like to ask you. One, that so far we have believed that the rights actually constituted the core of the Constitution. Do you think there is a shift in the discourse that now we are being told that it should be more of duty oriented than rights oriented? Do you think there is a deliberate attempt to bring that in front of us? That's my first question. Second is, what's the way ahead? Do you think whatever the Supreme Court has said now we have to abide by that, or can there be anything done about it? Who are you asking? Yes, you, sir. Oh, no. These are interim orders. The Supreme Court may well modify in view of the different points raised by different people, the different objections. So there's no question about it. The only thing is, patriotism must come from the heart. Patriotism cannot be legislated, as I said, cannot be judicially mandated. That's the whole point. And I agree with you. We must have the feeling for our country, for our nation. But the thing where it should be done is at home and in educational institutions. My only point is that the judiciary has rather gone beyond its sphere in giving all these directions, which are more in the nature of legislative directions, and that's beyond the judicial ken. There are two views on it. It will be argued when the matter comes back, when the interim directions have to be modified, confirmed, and then all these points I'm sure the judges would consider. Yeah, and so part of my question was also that so far that we've believed that our Constitution is actually, our rights constituted the core of the Constitution. But do you think now there is a shift in the discourse that we are trying to invoke duties more than the rights? No, I don't think so. They're both complementary. Rights and duties are complementary. There's no question of thinking that 51A was an authoritarian measure. It did come during the emergency. In the beginning, I was also shocked. But if you look at the various duties there, I think it's one of the well-drafted provisions of the Constitution. Only thing is, you can't judicially enforce fundamental duties as you can enforce fundamental rights. That's the whole point. And to the extent the judiciary tries to do so, I think it's beyond its ken.
बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो जाहिर है ये बहस बहुत लंबी है। बहस में इस पे भी करना चाहती थी कि जिस तरह से खुद टैगोर ने इस बात को कहा कि अगर राष्ट्रवाद एक हद तक आगे बढ़ जाए तो नेशनलिज्म को खतरा ये है कि जेनोफोबिया ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाकी लोगों से नफरत करने लगे अपने देश से प्यार करते हुए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसानियत जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से एक बड़ी चीज़ है, और इंसानियत को खतरे में ना डालें हम जब राष्ट्रवाद या देशभक्ति या देश प्रेम का हम जिक्र कर रहे हैं। तो जाहिर है बहस ये अभी लंबी है और चलती रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।